कुछ लोगों को कुछ फैक्टर्स टाइप के क्वेश्चन में डिफिकल्टी है और कुछ एक नंबर सिस्टम का एक टॉपिक भी रह गया था, उसको भी पहले कवर कर लेते हैं, देन विल कम बैक टू कैलेंडर्स एंड क्लॉक्स। बिफोर दैट ए मैक्स आपका टाइम पे चल रहा है? कितने लोग पीछे हैं? क्यों? क्यों सर? आप क्यों पीछे हैं? टाइम लग रहा है समझने में? हिस्ट्री में क्या समझना होता है? हिस्ट्री में हो चुका है जो होना है, समझना नहीं है, सिर्फ रट लेना है कि ये हिस्ट्री में हुआ है। अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है, पीपल फैक्टर्स हमने देखे थे, फैक्टर्स का क्वेश्चन वी सॉ, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ दैट फैक्टर्स थिंग? फॉर्मूला ऑफ फैक्टर्स a+1 b+1 c+1 and so on. Remember this? And what is this a, b, c? And x, y, z are prime factors. Yes? याद है? अच्छा, some of you came to me saying कि सब पुराना उस टाइम तो सब समझ में आ गया था, now we have forgotten, we have tried to forget. तो किसने मना किया रिवाइज करने को? Who has asked you not to revise? First of all, one thing is that. Second thing is I will take sessions, don't worry. Revision sessions भी लूंगा, and whatever practice sheets that you have been given, we will discuss few questions from that, all of the practice sheets, right? So keep it, because I also understand कि भूल तो जाएंगे, so थोड़ा सा एक revision तो बनता है. So we will take 2-3 doubt sessions of sorts, wherein we'll go through all the practice sheets, जिसमें एक quick revision हो जाएगा हर aspect का, ठीक है? That's the point. Don't worry, revise करेंगे. So we remember this. Now if the question is how many factors of 400 are perfect square, what do we do? Give me some idea first. Don't start writing. How do we find? इसके 400 के फैक्टर्स कितने होंगे पहले तो ये बता दो. 400 is what? 4 into 4 into 5 into 5, है ना? So 2 raised to power 4 and 5 square. यही है ना? Yes, sir. This is 400. Yes. So the number of factors would be 4 plus 1, 2 plus 1, 5 into 3, 15. याद है सब? But the question is not how many factors are there. If the question was how many factors, so this is the answer. But how many factors which are perfect square? Now, इसमें तो क्या situation है that we can write down 15 and we can find out also. But what if the number is larger? So we have to understand what should be done. So what do we do? Any ideas? Break down करें factors. कैसे break down करें factors? 400 क्या बोल रहे हो आप? 2 square, 2 square, 5 square. इससे क्या होगा? कैसे निकालेंगे factors बताइए? हैं? 2 square, 2 square, 5 square किया तुमने. सो 2 स्क्वायर एक, चलो 4 हो गया फैक्टर जो परफेक्ट स्क्वायर है. एक 25 हो गया जो परफेक्ट स्क्वायर है. व्हाट एल्स? 4 स्क्वायर ऑल्सो हो गया, चलो मान लिया. कैसे निकाल रहे हैं? 400 में तो निकाल दिया, वही तो पूछ रहा हूं मैं. हाउ आर वी फाइंडिंग इट? यू आर रैंडमली टेलिंग, टेकिंग सम नेम्स, नंबर्स. 4 स्क्वायर ऑल्सो, 10 स्क्वायर ऑल्सो, 2 स्क्वायर ऑल्सो, 5 स्क्वायर ऑल्सो. ऐसे नहीं, बट हाउ आर वी फाइंडिंग इट आउट? वी हैव टू हैव अ मेथड, राइट? लॉजिक. हाउ डू वी फाइंड इट आउट? सो व्हाट डू वी डू? कैन आई राइट दिस एज 20 into 20? Yes. So for any factor to be a perfect square, what do I need? That the factor should be multiplied by itself, should multiply by itself, and still there should be a factor. Yes. So 20 के क्या factors हो सकते हैं? अब अगर ये 20 into 20 है, that means all the factors of 20 will have to be multiplied twice to get 400, है ना? क्योंकि 20 into 20 करेंगे, 20 के factors क्या बनते हैं? 1, 2, 4, 5, 10. Yes, these are the factors of 20. So ये भी factors of 20 रहेंगे. Yes, because 400 is 20 into 20. So if I multiply, they will also remain a factor only, right? And what am I doing? 2 into 2 is a perfect square, 4 into 4 is a perfect square, 5 into 5 is a perfect square, 10 into 10 is a perfect square. So I have to find a pair जो दो same number हो, which are the factors. Then all the factors of that number, right, when multiplied by the same number, because it is in pairs, they will become a perfect square. So all the factors will be perfect square.
4 is a perfect square. 16, yeah, sorry, either 16 will be a perfect square, 25 will be a perfect square, and 100 will be a perfect square. So these are the factors which are perfect squares. समझ में आया कुछ? Yes? ठीक है? 20 into 20 तो 400 है ही, वो तो है ही, चलो एक 400 भी है obviously. 400 also a factor of 400, so 400 भी है. 5 होंगे सर. 400 भी तो इस 15 में 400 भी तो एक फैक्टर है. 400 into 1 is also a factor, no? तो काउंटिंग में 5 होगा. अगर यही चीज मैं 900 के लिए करूं तो क्या होगा बताइए. लेट्स सी, करते हैं प्रैक्टिस. ऐसे क्या है? टेल मी, फॉर 900 व्हाट विल हैपन? पेन चलाओ लाला आप थोड़ा सा, और फिर बताओ. दोनों काम करना है. ऑनलाइन गाइस समझ में आ रहा है? यस सर। क्या वो मेरे कपड़े पसंद नहीं आए किसी को? आज 65 से ज्वाइन करते ही जैसे जैसे स्टार्ट करी क्लास 62 हो गए. 3 लोग चले गए. हाँ जी, क्या डाउट हुआ? 1 into 1, 1 को परफेक्ट स्क्वायर थोड़ी मानते हैं देखा जाए तो. मानते हैं क्या 1 को परफेक्ट स्क्वायर? व्हाट इज द परफेक्ट स्क्वायर? 1 तो हमेशा ही एक वो है. 1 को 1 इज 1. दिस इज नॉट अ स्क्वायर. स्क्वायर कैसे निकाला, क्या किया? 30 into 30 कर दिया. आइडिया आ गया मुझे अब. 30 के फैक्टर्स देख लिए. 2 3 5 1 2 3 3 5 5 6 6 10 15 एंड 30 तो है ही. कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7. 6 क्यों गिन रहे? 30 is 900. वो भी तो एक फैक्टर है. 4 के फैक्टर 1 2 4 नहीं देखते हम, राइट? सो दैट इज द पॉइंट. क्लियर? अभी आ रहे हैं मैडम? सर सर ऐसे थोड़ी खत्म हो गया. हाँ जी. ये परफेक्ट स्क्वायर में वन को फैक्टर नहीं गिनेंगे? परफेक्ट स्क्वायर में 1 को नहीं लेते हैं यार. क्यों लेना है 1 को? 1 परफेक्ट स्क्वायर है क्या? मतलब एनीवे आई कंफर्म कि 1 को लेता है यूपीएससी या नहीं लेता है. लेट मी फाइंड आउट एंड कंफर्म. ठीक है. तो अगर 1 को लेंगे, अगर यूपीएससी 1 कंसिडर करता है तो विल ऐड 1 मोर. If UPSC does not consider 1, then we'll keep this as it is. Right? So in this case, there will be 8 if we take 1 also. If we do not take 1, it's 7. We'll see. Is this clear? अभी तो परफेक्ट स्क्वायर वाले ये ऐसे आ गए. अगर सेम क्वेश्चन में 1000 के लिए पूछूं, then what do we do? Tell me. या 1000 छोड़ो, 1000 भी करेंगे. 800 बताओ चलो पहले. What do we do for 800? Think. क्या कर सकते हैं? 2 into 400. वेरी गुड. इसको कैन आई राइट इट एज 2 into 400? नाउ 400 क्या आई नो. परफेक्ट स्क्वायर तो यही वाले रहेंगे. कितना? 1 2 4 5 10 एंड वट एवर 20. यस. सो आई ब्रेक इट इन सच अ मैनर. द परफेक्ट स्क्वायर फिर स्टिल रिमेन दिस ओनली. टू 800 के अदरवाइज फैक्टर्स कितने हैं? हाउ मेनी फैक्टर्स आर देयर? 2 raised to the power 5 इंटू 5 स्क्वायर. 400 के 4 2 raised to the power 4 into 5 स्क्वायर था ना. तो 800 इज 2 raised to the power 5 into 5 स्क्वायर. दो और ऐड हो गया, एक मल्टीप्लाई हो गया बेसिकली. सो द फैक्टर्स आर 6 into 3 18 फैक्टर्स. यस. आउट ऑफ दैट अगर 18 फैक्टर्स लिखने भी हैं, लिख सकते हैं जरा. 1 2 4. 800 है तो 8 भी होगा, 5 भी होगा, सॉरी 10 होगा, 20 होगा, 40 होगा. आसान वाले तो लिख लो पहले. 80 होगा, 100 भी होगा, 200 भी होगा, 400 भी होगा, 25 भी होगा, 50 भी होगा. 60 का 800 में कैसे आएगा? 16 भी होगा. कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. 3 और बचे.
32 भी हो जाएगा। और कौन सा है? दो और बचे हैं। 64 नहीं आएगा। 40 हो गया था, 80 हो गया था, 50 हो गया, 50 भी हो गया था, सॉरी। 160 भी होगा, यस, ऑब्वियसली। और 320 भी हो जाएगा। 320 नहीं होगा रे, ढाई गुना थोड़ी करना है। 160 होगा। एक और बचा है कोई, कौन सा बचा है? 800, 800। ठीक है। सो दीज आर द 16 फैक्टर्स, लेट्स से 18 फैक्टर्स, यस। वन भी है भाई, हाँ। सो दीज आर द 18 फैक्टर्स। नाउ वी वांट टू फाइंड आउट ऑल द परफेक्ट स्क्वायर्स। परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से हैं? 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, 1 को भी चलो ले लेते हैं अभी के लिए। ठीक है। 25 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, 16 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, 100 इज अ 5। परफेक्ट स्क्वायर, 400 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। कितने हो गए? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। तो 5 भी कितने आएगा ना? निकले हमारे? 1, 2, 4, 5, 10, 20, 6। So what I was saying is it does not matter that if you multiply any number, right, as long as you're able to come to a point wherein you have two same factors, right, as a product, उसके जितने भी फैक्टर होंगे वो हर बार डबल मल्टीप्लाई होंगे, एंड दैट वुड मीन इट विल बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर। अब 1000 का देखें। 1000 का देखते हैं। लेट्स डू फॉर 1000। 1000 में क्या करें? 1000 वुड बी 10 into 100। सर, यस सर। स्ट्रीम लैग हो रही है बहुत। So for 1000 it is 10 into 100, right? You have to bring it down to a point जहाँ पे हम एक सेम बेसिकली कॉमन फैक्टर निकालना है, और उसके फिर जो करस्पॉन्डिंग फैक्टर्स होंगे यू मल्टीप्लाई देम विद द सेम फैक्टर्स एंड यू गेट द आंसर। दैट इज द ओनली वे हियर if the question is asked how many factors are perfect squares. There is no other idea, there is no other way. Otherwise the number will become larger, you will have a very long list of factors, and with that you will never be able to solve it by standard method. Getting the point? तो इसके कितने बने? 10 into 10, 1, 2, 5, sorry, and 10. Yes. 5 मिनट रुक जाओ यहीं पे, अगर कुछ ब्लॉक होगा तो फिर पीछे देखेंगे। यहीं रुक जाओ 5 मिनट। ठीक है। सो द फैक्टर्स आर गोइंग टू बी दिस। ऑलराइट। ठीक है। डाउट कहाँ है? पूछो सर। उससे क्या होगा? सर, कैसे आ रहे हैं? आप बोल रहे हो 1000 को मैं कर लेता हूं 25 into 40, फिर 25 के फैक्टर्स कितने? 1, 2, 1, 5। हाँ। ओके। हाँ। 1, 2, 4 और 5, 40 है मतलब, चलो 4। तो भैया ये दूसरा 25 कहाँ है मल्टीप्लाई होने के लिए? यहाँ पे दो 10 है, तो 5 into 5 करना। 25 into 25 क्यों कर रहा है? चलो 1, 5, तो 1, 5 यहाँ भी है। 2, तो 1 यहाँ था ही ना, दो दो बार काउंट कर लेगा 1 को, तो ये रहा 2। और बता, 10, 10 भी तो ले ले फिर। सिर्फ 25, 40, 40 है ना, इंटू 10 भी तो वो भी करेगा उधर। इधर तूने 5 into 5 लिया, इधर तूने 4 लिया, राइट? फिर उधर कितना बचा? 4 हटा के 10 बचा, तो एक 10 का भी आ जाएगा, क्योंकि एक 10 भी निकलेगा इवेंचुअली। 5 into 2 भी निकलेगा एक, 5 into 2 भी तो निकलेगा ना एक। वो कहाँ जाएगा फिर? 10 सिर्फ एक थोड़ी है, तो उसमें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सिंपल बता रहे हैं, सिंपल अच्छा ही लगता है। ठीक है, हाँ, एक्सप्लोर करो, आएगा वो ही घूम फिर के। एंड इसमें कंफ्यूजन ये होगा कि तुम इसको लिखोगे 5 into 5, 2 into 2 into 10, तो बस आपको 10 अभी तो एक दिख रहा है, बट 10 ये भी तो है। यू विल हैव टू सी दैट आल्सो along with that, right? So you will get confused कि इसमें एक ना एक मिस हो जाएगा। ये शॉर्ट मेथड है, इसमें कुछ मिस नहीं होगा, आएगा वही। ऐसा नहीं हो सकता कि अलग आ जाए। 25 को क्यों नहीं लिया? क्योंकि 25 दो बार नहीं है। अब 40 को 25 + 15 मत लिख देना,
ठीक है, गेटिंग इट? लो, डाउट क्लियर हुआ? व्हाट डाउट डिड ही आस्क? यस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. If there are 7 factors of a number, if there are 7 factors of a number, what is the minimum number? दोस्तों उल्टा दिख रहा है क्या स्क्रीन पे आपको? नो सर, सही दिख रहा है। अभी ओके है सर। नहीं आ रही Okay. मुझे क्यों उल्टा दिख रहा है फिर यहाँ पे? ओके. If there are 7 factors of a number, what is the minimum number? क्या करेंगे इसमें? सुनो पहले, सोचो, कूदो मत. A की पावर 6। Find a method. Find a logic basically. So what do we do in this? When we say there are 7 factors, what is the thought that comes to mind? 6 plus 1 first of all, and second of all it has to be a perfect square also. Odd factors हैं? Odd factors सिर्फ perfect squares के होते हैं? Yes? याद है? नहीं याद है? You remember? So 7 factors would mean we are talking about 6 plus 1. There is no other way. That will become 6 plus 1. 7 factors basically. कोई और नंबर होता, let's say 12 factors होते, तब तो मल्टीपल ऑप्शंस हैं. 11 plus 1 है, देन 3 into 4 भी है, सो 3 plus 4 plus वो भी हो जाएगा, 3 into 4 वाला, तो मतलब 2 plus 1 and 3 plus 1, तब तो मल्टीपल हो जाते हैं. बट जब फैक्टर्स ही प्राइम नंबर है, सो इट कैन ओनली बी 6 plus 1, क्योंकि कोई और फैक्टर नहीं बनेगा उसका, राइट? डिवाइड कर रहे हैं तो 6 plus 1 होगा, मतलब n raised to the power 6. Yes, this is a number, and they're asking the minimum number. When we're asking minimum number, what do? We put the smallest possible integer, which is 2. 1 रखेंगे क्या? 1 तो नहीं रखेंगे. 2 raised to the power 6, which is 64. So the minimum number with 7 factors is going to be 64. Simple as that. Getting the point? Minimum number निकालना है. समझ में आया क्या किया पीछे सबको? We are just building on the last class. हाँ जी, सर वापस रिपीट कर दोगे ये वाला? क्या वापस रिपीट करना है बताइए? सर n रेज़ टू 6। 6 कैसे आया? हाँ 7 फैक्टर्स का टोटल काउंट फैक्टर्स के कैसे निकालते हैं हम? ये निकालते हैं. हाँ सर, हाँ सर, तो मतलब इसका फैक्टर्स होने चाहिए ऐसे हाँ फिट करने में. हाँ सर, अगर 8 होते, मैं बोलता कि 8 फैक्टर्स हैं किसी के, तो क्या बोलते हैं हम? भाई 1 into 8 हो सकता है, 2 into 4 हो सकता हाँ सर, है ना? तो ये हो सकती है बात. तो इस केस में मैं क्या लिखूंगा? 1 into 8 को 7 plus 1. इस केस में क्या लिखूंगा मैं? 1 plus यस 1, सर, 3 plus 1. ठीक है ना? यस सर, तो 7 के केस में क्या बन सकता है? 7 into 1 बन सकता है. और कुछ बन सकता है क्या? नो सर, नहीं. तो 7 into 1 को कैसे लिख सकते हैं हम? 6 plus 1. यस सर, ठीक है, यहां तो कुछ नहीं लिखेंगे. डू वी राइट समथिंग हियर? 0 plus 1. नो और सर, किसी भी पावर का, किसी भी नंबर का पावर 0 मतलब 1 होता है. सो यू कैन राइट लाइक दैट आल्सो, बट इट डजंट मैटर. ये तो हाँ बेकार की बात है. सो दैट मींस द पावर हैज टू बी 6. n raised to power 6 के फॉर्म में नंबर है. नाउ n raised to power 6. अब ये नंबर कौन Yes, से sir. लेने हैं? क्या मैं ये 4 raised to power 6 ले सकता हूं? अगर स्मॉलेस्ट नहीं होता, would 4 raised to power 6 be valid here? Why? प्राइम फैक्टर्स करते हैं ना हम, देन इट वुड बी 2 की पावर 12 हो जाएगा फिर ये. We all, for this formula, do we not bring it down to the prime factors? 2, 3, 5, 7 ही तो रख सकते हैं हम n की वैल्यू. We cannot keep 4 as the value of n. We cannot keep 6 as the value of n. समझ में आ रहा है मैडम पीछे? थोड़ा सा कोई भी डाउट है पूछिए, राइट? डोंट शाय अवे फ्रॉम आस्किंग. दैट इज द पॉइंट. आपको समझ में आया दर्पी क्यों हम प्राइम नंबर्स रख रहे हैं? बिकॉज वी ब्रिंग इट डाउन टू प्राइम फैक्टराइजेशन ओनली. ठीक है, दैट्स द पॉइंट. सो n can be 2 raised to power 6, 3 raised to power 6, 5 raised to power 6, and so on, but not in between, क्योंकि प्राइम फैक्टर्स ही लेते हैं हम. और क्योंकि मिनिमम नंबर पूछा है, दिस इज गोइंग टू बी द मिनिमम नंबर. सिर्फ लॉजिक लगाइए, मैथ्स मत लगाइए, अकल लगाइए. ठीक है, इज दिस क्लियर? आगे विधि पीछे की सबको? ऑनलाइन गाइज, एनी डाउट? नो सर। ऑल क्लियर? चलिए देखते हैं. फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर
with 6 factors. क्या करेंगे इसमें आप? Find the smallest number with 6 factors. कैसे होगा? 6 factors. Find the smallest number with 6 factors. 1 into 6 and 2 into 3. नंबर बताओ सर, फैक्टर्स नहीं, पूरा आंसर बताना है. फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विद 6 फैक्टर्स. कौन सा ऐसा नंबर है जिसके 6 फैक्टर होंगे? स्मॉलेस्ट नंबर दैट टू. तो इसको मैं डिवाइड कैसे कर सकता हूं? 6 into 1 and 2 into 3. Yes, rather 6 into 1, sorry, हाँ 6 into 1 and 3 into 2. बड़े वाले को मैं पहले रखना चाहता हूं बिकॉज 2 की पावर बनेगा वो, 3 की पावर नहीं बनाना है, राइट? जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी कि ये 2 की पावर देगा. मैडम नहीं समझ में आ रहा है आपको ना? हाँ जी, अभी इसी की हो रही है सर. अच्छा, ये आपने मिस करी थी क्या फैक्टर्स वाली? अच्छा, आपकी नहीं हुई है. अच्छा हाँ, वो आज कैलेंडर कल कंटिन्यू होगा. ठीक है, यू कैन कम इन द नेक्स्ट क्लास इफ यू गाइस वांट. ब्लैंक बैठने से फायदा नहीं है. ठीक है, इज दिस क्लियर पीपल? यस. सो इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं? 2 raised to power 6 या 2 raised to power 5? 5. गुड, कुछ भी करते हो. 5 plus 1 हुआ ना भाई? सब हाँ कर रहे हैं. This is 2 raised to power 5, right? This is 2 square into 3, है ना? 2 plus 1, 1 plus 1. Is there anything else that can be formed? No. 2 raised to power 5 is what? 32. This is what? 12. What is the smallest number between the two? 12. नहीं आया समझ में? 32 करते, आगे अरे करे 2 नहीं. स्क्वायर वाला समझ में नहीं आया. 2 स्क्वायर इंटू 3 raised to power 1 वाला. एक मिनट आए दोस्तों. 4 तिया 12 क्या 6? 3 into 2 होता है. 3 into 2 क्या है? फैक्टर्स है बेटा. a plus 1 b plus 1 फॉर्म में है ना? तो दिस विल बी व्हाट? 2 plus 1 1 plus 1. तो ये पावर्स कौन सी हैं? 2 की ये पावर है इसलिए 2 plus 1 लिखा. इसकी ये पावर है, सॉरी इसकी ये पावर है इसलिए 3 plus 1 लिखा. 1 plus 1 आ गया आ गया आ गया. आ गया सर. पुराना पार्ट बीच का मिस हो गया लग रहा है. रिवाइज कराना है क्या? नहीं नहीं सर, हो गया. क्लियर? व्हाट आर वी डूइंग हियर? किसी को डाउट है पूछ लीजिए. डाउट लेके नहीं जाना है क्लास के सर, बाहर. सर सही में नहीं आ रहा मुझे समझ में. क्या ये नहीं 2 समझ में plus आ 1 रहा है? वाला. हाँ जी मैडम, क्या स्मॉलेस्ट चाहिए? यस यस, स्मॉलेस्ट चाहिए इसलिए. ठीक है, दैट इज द पॉइंट. अदरवाइज इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप 2 into 3 square. इसके भी इतने फैक्टर्स होंगे बट इट विल बी 18. नंबर बड़ा हो जाएगा, है ना? सो आई जनरली स्टार्ट विद अ लार्ज नंबर फर्स्ट because it will go and as a power of 2 that will lead to the smallest possible number. If I want the largest number then I will do the opposite. मैं 2 को सबसे छोटी पावर दूंगा, मैं 357 को बड़ी पावर दूंगा. I'll give larger powers to 357 and all. स्मॉलर और लार्जर का ये बेसिक आइडिया है ना, ये तो इसको लगा के रखना है, ध्यान रखना है. क्या समझ में नहीं आ रहा है ध्रुमिल? ये तो सेम है जो पिछली बार किया था. सर ये सर 2 वाला समझ में. 2 स्क्वायर कैसे लिया? क्योंकि 2 raised to the 1 है ना. अरे यार, ये मैडम 6 into 1 हो सकता है. हमें क्या याद रखना है? फैक्टर्स, टोटल फैक्टर काउंट किस फॉर्म में होता है? इस फॉर्म में होता है, ये याद है? तो पहले तो फैक्टर्स डिवाइड करें. ये नंबर है, इसका जो आ रहा है नंबर वो नंबर बनता है. यस. तो हमने 6 को, आप लास्ट क्लास में थी फैक्टर्स के? थी. तो नंबर 6 को 6 into 1 लिखा क्योंकि मुझे इस फॉर्मेट में कुछ चाहिए. 6 को और कैसे लिख सकता हूं मैं? 3 into 2. और कैसे लिख सकता हूं मैं? 2 into 3 भी लिख लूं. चलो, और भी कोई तरीका है? हाँ, अगर करना है तो 1 into 6 भी कर लो. इमोशनल हो रहे हैं तो बात एक ही है. इफ यू हैव टू फाइंड डिफरेंट नंबर्स, लेट्स से. और ये a और b कहां से आते हैं? ये x की पावर a, y की पावर b, z की पावर c नहीं होता है ये? जहां पे x y z क्या होते हैं? प्राइम फैक्टर्स होते हैं. ध्रुमिल समझ में आ रहा है? यस सर. ये लास्ट क्लास में पढ़ाया था. हाँ तो ये 3 into 2 होने के लिए क्या लिखना पड़ेगा मुझे? 2 plus 1 लिखना पड़ेगा कि नहीं? इसको मैंने क्या लिखा? इसको मैंने लिखा 5 plus 1 इस फॉर्मेट में करने के लिए. इंटू चलो 0 plus 1. इसको मैंने लिखा 2 plus 1
इंटू 1+1, इसको लिखा मैंने 1+1 इंटू 2+1, और इसको लिखा मैंने 0+1 इंटू 5+1। यार ये बात समझ में? यस। तो अब मुझे फैक्टर्स बनाने हैं। ये प्राइम फैक्टर से स्टार्ट करते हैं। ये ए है, ए पावर चढ़ा था तो 2 की पावर 5 इंटू किसी की भी पावर 0, वो तो 1 हो जाएगा ऑटोमेटिकली, तो कुछ नहीं है। इधर क्या आ रहा है? 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। यही तो करेंगे। जितने फैक्टर्स हैं, जितने यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उतने प्राइम नंबर्स ऐड करते रहेंगे कि नहीं करते रहेंगे? अगर यहाँ 5 होते तो 2 3 4 नहीं मैडम, 5 7 11 प्राइम फैक्टर्स ओनली। इसमें अगर लिखना चाहूं तो 2 इंटू 3 स्क्वायर, यस। और ये 1 इंटू 6 का मतलब है कुछ भी लिख लो, 3 की पावर 6, 5 की पावर 6, हर एक नंबर के 6 ही फैक्टर होंगे। यू कैन ऑलवेज राइट दैट, बट वी वांट द स्मॉलेस्ट नंबर। I don't have to pick 2 here, na? I can pick any number raised to the power 5. It will have 6 factors, but I need the smallest number. That is why I am taking the smallest number. तो इससे नंबर कितना बना? 32। इससे नंबर कितना बना? 12। इससे नंबर कितना बना? 18। So what is the smallest number? 12. 12 will have 6 factors. कौन से हैं 6 factors? एक मिनट। So 12 is the smallest number which will have 6 factors. अब बताओ सर। कुछ भी कर लो सर, 3 रेज़ टू पावर 5 कर लो, 5 रेज़ टू पावर 5 कर लो, 7 रेज़ टू पावर 5 कर लो, एक ही बात है। नेक्स्ट है, बट वैसे मैं बोल रहा हूँ जस्ट विजुलाइज करने के लिए। चाहे मैं 3 रेज़ टू पावर, ये मैंने बोला 2 रेज़ टू पावर 5, इसके भी 6 फैक्टर है। अगर मैं यहाँ पे 3 रेज़ टू पावर 5 होता, कितने फैक्टर होते? कैसे? 5+1। अगर ये 7 रेज़ टू पावर 5 होता तो इसके कितने फैक्टर होते? तो कुछ भी नंबर लिख लो, 6 ही फैक्टर आएंगे। But I need the smallest possible number. That is why I am taking 2. Yes? If you are simply asked by 11 raised to the power 5k, how many factors are there? 6 factors. If you are asked 101 raised to the power 5k, कितने factors are there? 6 factors again. Because 101 is also prime number. So every number raised to the power 5 will have 6 factors. There is no denying there. ठीक है? So उससे तो फर्क ही नहीं पड़ता है। Just because I have been asked to give you a smallest number, so I am taking 2. Getting the point? समझ में आया दोस्तों? ऑनलाइन ध्रुमिल? यस सर। आ गया? चलिए, वेरी गुड। टेंशन मत लीजिए, अपन है, सब सॉल्व करेंगे। करिए सॉल्व। अब नंबर ऑफ प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी। आज 30 क्वेश्चन है क्लास में करने के लिए। वी आर एट 111, 102 से स्टार्ट किया। 8 को कैसे लिखूं? हाउ डू आई राइट 8? 8 into 1, then 4 into 2, then क्यों? बस क्यों? बस क्यों? सब याद रखना है, अभी हो जाएगी गड़बड़ नहीं तो। हुआ? क्या ये हुआ सबका? एनी डाउट हियर? कैलाश? यस? So smallest number is, this is what, 128, this is what, 24, this is what, obviously ज्यादा है। सिंपल, इजी पीजी। नहीं आया समझ में? उड़ गई, उड़ गए। हाँ भाई ऑनलाइन गाइस, वेरी गुड, 24 वेरी हाँ गुड। सर आ गया। श्रुति, विशुल, वेरी गुड। विजय, ठीक है, गुड। एक और लो।
Solve, please. Solve करते हुए अपने register में you have to also see that you are using the least possible steps, so that it gets faster also. Many of you could solve a lot of questions in the test, but they took extra time. So we need to see we are taking least possible steps. Unnecessarily steps नहीं बढ़ा रहे हैं. पहले 4 लिखा, पहले 2 into 2 लिखा, फिर 4 लिखा उसको ही. कुछ skip करिए steps. Try again. Try again. Anything? Both are okay. You will get different numbers. Both are okay. I got 60 as answer. I got 72 as answer. 72. Somebody said 60 as answer. Somebody said 72 as answer. कोई और भी है? 96 भी बोल दो. किसी का 96 भी आ रहा है? हाँ भाई, क्या है आंसर? आपस में सॉल्व नहीं करना है, एग्जाम में साथ में नहीं जाए बैठेंगे. एनीथिंग दैट यू आर ट्राइंग हियर प्लीज सॉल्व इट ऑन योर ओन, क्योंकि यहाँ तो हो जाएगा 2 लोगों के साथ, वहां दूसरा लोग नहीं मिलेगा, कोई इन्विजिलेटर ही आएगा फिर कि मैं कराता हूँ बेटा. ट्राई अगेन. स्मॉलेस्ट नंबर पूछा है, क्या मुश्किल है? ऑनलाइन गाइस क्या है? 60 सर. आ गया 60 60. सबका? 72 क्यों आया है? चेक करिए मैडम मंजूश्री, कैसे आया? आपका क्या है? पीछे शिल्पी आ गया? क्या लिखा है हमने ये? 12 into 1, 4 into 3, 3 into 4, whatever you want to write, 2 into 2 into 3. Yes? 2 की पावर 11, 6 into 2 भी है. यस ठीक है. 2 क्यूब 3 स्क्वायर. अगर आपको करना है 2 स्क्वायर 3 क्यूब, 2 3 5 स्क्वायर और 2 स्क्वायर 3 5, कुछ भी हो सकता है ये. दिस कुड बी 2 स्क्वायर 3 5 ऑल्सो, एंड दिस इज 3. ठीक है, क्या क्या बन रहे हैं इसको छोड़ देते हैं. ये कितना है? इधर लिखूंगा 2048. 72. ये कितना है? 27 into 4. बताओ अभी इतनी देर क्यों लग रही है? 98, 108. 27 into 4, 108. ये कितना है? 2 है यहाँ पे. 25 into 6, 150. और ये नीचे 60 हुआ ना, 12 पंजे 60, और ये वाला 96. ये वाला लिया है ना 60, ये नहीं लिया किसी ने. ठीक है, इट कुड बी इधर वे. यू हैव टू पुट द हाईएस्ट नंबर, हाईएस्ट पावर इन द स्मॉलेस्ट नंबर, so that you get the smallest possible outcome. आपने ये तो लिया, बट आपने ये नहीं लिया. That is where the confusion was. ठीक है, ऑल ओके. एक ही बात है ना, मैं इसको 3 into 2 into 2 लिख दूं, क्या प्रॉब्लम है? It's the same thing. I would want to write it as 3 into 3 into 2, 3 into 2 into 2. Any doubt? है डाउट? अच्छा, हाँ, क्लियर है सबको? ऑल क्लियर पीपल? किसी को भी डाउट है पूछिए, घबराइए मत. एक और आपके पास 16. ध्यान से, इस बार सबका सही आंसर चाहिए. सर 210. 210. एक आंसर है मेरे पास 210. Yes. वन 120. एक आंसर है 120.
देखो मत करो, टेंशन क्या है? इतनी देर? हाँ, 210 210 ही आ रहा चेक करिए. है Whenever you have 120. to find the least number, first of all, let's 120. come to the smallest possible powers. And if there are a large power within the smallest possible powers, we give it to the smallest possible number. तो smallest possible powers तो 1 1 1 1 नहीं बन जा रही हैं? 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 कितना है वो? 210 है. और फिर आगे 4 इंटू 2 इंटू 2 भी एक है, वही नहीं लिखा था मैंने कि देखें तो, वो भी लिख दिया. 120 नहीं आ रहा है किसी का? Yes, sir. 4 इंटू 2 इंटू 2 कर Yes, लो ना sir. यार. 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 5, 8 3 24, 24 पंजे 120. सॉरी तो बाद में यूपीएससी बोलेगा. मेरे सॉरी बोलने से क्या होगा? वो प्रैक्टिस से ही तो सॉल्व करना है. हाँ सर बताओ. 4 इंटू 2 इंटू 2 16 नहीं है? वो एक ही छोड़ देते हैं बस हम. मैंने भी इसलिए छोड़ा था कि मैं देखूं, जानबूझ के नहीं लिखा था कि कोई बताएगा क्या एक और है सर. क्या नहीं समझ में आया बताओ सर? 16 के फैक्टर है ना सर ये 16 कहाँ से आया हमारा? 16 किस फॉर्म में आया? a+1 इंटू b+1 फॉर्मेट में था ना. तो मुझे कुछ मल्टीप्लिकेशन फॉर्मेट में चाहिए कि 16 कैसे आए. 16 को 16 इंटू 1 लिख सकते हैं, तो ये पूरा 16 हो जाए, ये 1 हो जाए. अभी तो बताया था थोड़ी देर पहले, ये जोन आउट थे. क्या ये 15 + 1 इंटू 0 + 1 है? वो किया. फिर 16 को मैं 8 इंटू 2 भी लिख सकता हूं, तो ये 7 + 1 और 1 + 1 है. यहाँ पे ये c + 1 भी हो जाएगा, ये चलता रहता है, कितने भी हो सकते हैं. इसको मैं 3 + 1 और 3 + 1 लिख रहा हूं. इसको मैं 1 + 1 1 + 1 1 + 1 1 + 1. इसके आगे क्या सर, क्या बताया था? प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं? तो अब मेरे पास जब ये 4 पावर हैं, तो मैं कहाँ बिठाऊंगा? एक 2 के ऊपर बिठाऊं, एक 3 के ऊपर बिठाऊं, एक 5 के ऊपर बिठाऊं, एक 7 के ऊपर बिठाऊं. और होती तो अगली 11 के ऊपर बिठाता, उसके बाद 13 के ऊपर बिठाता, फिर 17 के ऊपर बिठाता, फिर 19 के ऊपर बिठाता, फिर 23 के ऊपर बिठाता. जितने आते रहेंगे उतने बिठाता रहूंगा, बट सिर्फ प्राइम पे ही. तो जब ये 7 + 1 आया, तो मैंने 2 पे बिठाया, 3 पे 1 बिठाया, 2 पे ये 3 पे ये. फिर इधर आया तो 3 पे ये, 2 पे ये, 3 पे ये. इधर आया तो ये 4 बिठाए. और अगर मैं इसको एक 4 इंटू 2 इंटू 2 भी लिखूंगा, कौन सा सर? सर 3 है ना सर. 3:1 कैसे होगा? यहाँ भी 3 है. जब 2 क्यूब समझ में आ रहा है, तो 3 क्यूब में क्या दिक्कत है? सेम है. अलग क्या है? ये 7 है, ये 1 है, इसलिए लिया है. ऐसे नहीं कि 7 के बाद एक ही लेना है. ठीक है. अभी भी समझ नहीं आया मुझे पता है, कोशिश करेंगे एक बार और. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से भी आते हैं. इफ n² has 15 factors, if n² has 15 factors, then how many factors can n have? If n² के फैक्टर 16 हो सकते थे क्या? 14 हो सकते थे क्या? क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है, ऑड ही हो सकते हैं. So n² will always have odd number of factors. That's why if n² has 15 factors. If you see a question if n² has 16 factors, you know it is undeterminable. Leave the question.
वो भी क्लैरिटी चाहिए। कैन नॉट बी डिटरमाइंड का ऑप्शन होगा उसमें फिर ऐसे में, तो क्वेश्चन से आ जाएगा, निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इफ देयर इज अ क्वेश्चन n square has some even number of factors, n square can never have even number of factors because it is a perfect square, n into n हो ही रहा है, तो वो एक कम हो जाता है। क्या करें इसमें? if n square has 15 factors, So 3 factors. 15 factors, so 3 factors नहीं, n के It कितने will have- होंगे? n के n 3 ही will have होंगे। 3 factors. कैसे? n square has 15 factors, 15 को मैं 15 into 1 लिख लूं, या 5 into 3 भी तो लिख 8 सकता हूँ। होंगे। I can write it like this or not? क्या हुआ हर्ष? नहीं समझ में आ रहा है कुछ? हाँ, जिंदगी ब्लैक एंड व्हाइट होती दिख रही है नंबरों के बीच में, क्यों? आ रहा है पीछे सबको? आ रहा है? आकाश, आकाश नाम है ना आपका? विवेक, आपका क्या नाम है दोस्त? ब्लू शर्ट, आपका नाम भूल गया मैं। संदीप, हाँ, डॉक्टर संदीप, डॉक्टर है ना आप? इंजीनियर संदीप, चलो हाँ इंजीनियर संदीप, हाँ ठीक है। सो दिस कुड बी समथिंग की पावर x की पावर 14, और दिस कुड बी x की पावर 4, y की पावर 2। ये भी परफेक्ट स्क्वायर ही है, बनेगा ही ऐसा, देयर इज नो अदर वे। यस, सो इफ n स्क्वायर ऐसे लिख रहा हूं तो n कैसे होगा? n वुड बी दिस, isn't it? अगर n स्क्वायर रेज टू द पावर 14 है, सो n विल बी रेज टू पावर 7 ओनली, बाय 2 कर देते हैं ना पावर को जब स्क्वायर रूट लेते हैं, एंड इधर इट विल बी x स्क्वायर एंड y स्क्वायर, अंडर रूट ले लिया। इफ n स्क्वायर इज दिस, तो दो ऑप्शन है ना मेरे पास, उसमें पूछा हाउ मेनी फैक्टर्स कैन n हैव, एक नंबर नहीं है। इधर से कितने फैक्टर्स आ रहे हैं? 8, इधर से कितने फैक्टर आ रहे हैं? 6। सो द आंसर वुड बी 6 और 8। n कैन हैव 6 फैक्टर्स आल्सो, n कैन हैव 8 फैक्टर्स आल्सो। हाँ हाँ, तो x की पावर 14, अगर n स्क्वायर 2 की पावर 14 है, तो n क्या होता है? 2 की पावर 7, बाय 2 कर देते हैं स्क्वायर रूट लेते हुए। ये तो क्लियर है सबको? दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी डिड ऑनलाइन गाइस, इज दिस क्लियर? सर ये नीचे वाला 6 कैसे हुआ? ये वाला सर 2 + 1 × 1 + 1 यस सर, ऐसे ओके ओके सर, यस सर, यस सर। है ना, सेम ही कर रहे हैं, कुछ बदला नहीं हमने, बस मैं सर, अब डायरेक्ट हमने लिख दे रहा वो हूँ। आई सम एम किया- होपिंग कि सर, आप मैं लोग वो अब सम थोड़ा नहीं सा किया था। फास्ट ट्रैक समझेंगे। आई एम राइटिंग इट डायरेक्टली, नथिंग एल्स। सर हमने वो वाला सम किया था n स्क्वायर। क्या सर? बताओ ध्रुमिल। सर हमने वो वाला सम किया था n स्क्वायर इज 16, तो n, सर हमने वो वाला सम नहीं किया था n स्क्वायर इज 16 फैक्टर्स, तो n के कितने हुए? ऐसे टाइप का सम कहाँ है ना किया ये था वाला। हमने? n स्क्वायर के 16 फैक्टर n के कितने हुए? ये थोड़ी किया था, उल्टा किया था हमने। n के 16 है तो n स्क्वायर के कितने होंगे, ये किया था हमने। अब ये उल्टा है, ठीक है? Okay. उसमें मल्टीप्लाई बाय 2 सबको Yes, sir. पावर्स को किया था, हर एक को n के डिफरेंट फैक्टर्स बनाए थे, वी मल्टीप्लाइड ऑल द पावर्स बाय 2 एंड देन वी गॉट मल्टीपल आंसर्स देयर आल्सो। इफ n हैज 16 फैक्टर्स, हाउ मेनी फैक्टर्स विल n स्क्वायर हैव? दैट वाज द क्वेश्चन, राइट? आएगा वो भी, अभी समझ में आएगा, टेंशन मत लो। इन केस ये क्यूब होता तो 3 हो जाता सर, ठीक है? दैट इज हाउ इट वर्क्स। पावर से बात 3 से करते हैं। हाँ जी, क्यूब होता है तो पावर को 3 से डिवाइड करते हैं। क्यूब होता तो या पावर 2 को 3 से डिवाइड करते, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है? चलिए, इसमें ही अगर क्यूब होता, इफ n क्यूब हैज 15 फैक्टर्स, हाउ मेनी फैक्टर्स विल n हैव? तो अभी मैंने 2 से डिवाइड किया पावर को, इन दैट केस आई वुड हैव डिवाइड द पावर बाय 3। गेटिंग द पॉइंट, राइट? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑड फैक्टर्स कैसे निकाले थे हमने? जस्ट अ क्विक रिवीजन, हाउ डिड वी फाइंड ऑड फैक्टर्स द अदर डे? वी डिड फाइंड ऑड फैक्टर्स,
एंड इवन फैक्टर्स रशिका बताएगी क्योंकि उसे याद नहीं है। बताओ। आई एम दैट खपती टीचर की शक्ल पे याद, इसे नहीं पता, इसे पूछूंगा। बताओ रशिका, पढ़ के नहीं बताना है, ऊपर देख के बताना है, लॉजिक लगाने का है। ऑड फैक्टर्स किस केस में बनेंगे? इफ यू डू नॉट मल्टीप्लाई इट विद एनी अदर even factor. If you keep multiplying odd factors together, it will have multiple odd factors. अगर factors 2, 3 और 5 है, the factors will also be 2 into 3, factors would also be 2 into 5, factors would also be 3 into 5. So whenever you multiply 2 into 3 or 2 into 5, वो तो even हो गया because even से multiply कर दिया, but 3 into 5 remains. 3 into 5 will be the odd factor. Yes, and 3 and 5 are also odd factors. So we have to find only odd factors. That means if I do not consider 2 in my calculation, all the factors that will remain will come as odd factors. That's what we did. So 360 को कैसे लिखा था मैंने? 36 into 10, right? 6 square into 2 into 5. तो ये हो गया 2 cube, 3 square into 5. ये लिखा था? Yes? इसमें कुछ नहीं किया, इसमें घबराने वाली बात नहीं है जो लोग घबरा रहे हैं। अगर टोटल फैक्टर्स की बात करते हैं तो कितना बन रहा है? 4 into 3 into 2, 4, 3, 2 टोटल फैक्टर्स कितने हुए? 24। अब मुझे सिर्फ इवन फैक्टर्स चाहिए, सॉरी ऑड फैक्टर्स चाहिए। एवरी टाइम ये 24 कैसे आया है? 2 इससे भी मल्टीप्लाई, उससे भी हो रहा है, फिर अगला 2 भी हो रहा है, फिर अगला 2 भी हो रहा है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, इट कीप्स ऑन गोइंग। 4 भी हो रहा है। सो इफ आई रिमूव दिस ऑल टुगेदर, whatever remains will only multiply among themselves and they will completely be odd numbers because we are only multiplying odd numbers together. फिर हम किसी भी केस में इवन फैक्टर बना ही नहीं रहे। यस, सो सिर्फ इसको हटा दो, ठीक है, और बाकी सेम फॉर्मूला लगा दो। यहां पे ये लगाते हैं, सॉरी 3 + 1, इसको मत काउंट करो बस। Whatever comes from here, they will multiply among each other only all the time. None of that will multiply with 2. Right? तो कितना हुआ? 6 Six, odd factors. सिर्फ 2 वाला फैक्टर हटा दो, उसके बाद जो भी बचा है सेम फॉर्मूला लगा दो। इवन के लिए माइनस कर दो, because there is no way to find even factors because there will be a lot of factors there. So you find odd factors, you find total factors, you subtract odd factors, whatever comes is even factors. Simple. Even का अलग से फॉर्मूला नहीं है कोई, फॉर्मूला इसका भी नहीं है, it's only logic again. Because every time you multiply with 2, the number becomes even. So it will become an even factor. So I don't want to consider 2 in my calculation. Remove that. The odd factors will only be this. अगर ये ऐसा होता तो इन सबको ले लेता मैं, सिर्फ 2 को हटाना है क्योंकि बाकी सब तो ऑड ही है। एंड आई वुड हैव मेड द कैलकुलेशन अकॉर्डिंगली। गेटिंग द पॉइंट? सिर्फ 2 वाला हटाना है ऑड फैक्टर्स के लिए, और कुछ नहीं करना है। यस, क्लियर? हाँ, क्योंकि 4, 3, 2, ये क्यों कंफ्यूजन हो रहा है बार बार? a + 1, नो यू डिड नॉट। तो बेटा a क्या है? a 3 है, 3 + 1। b क्या है? 2, 2 + 1। c की इसके 1 भी लिखूंगा अगली बार से। नहीं, ऐसे कैसे? 1 भी लिखेंगे अगली बार से मैडम, ठीक है? क्लियर? ऑड फैक्टर्स निकालने हो तो। अब एक क्वेश्चन आता है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स पे, ठीक है? प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स कैसे करें? 10 के फैक्टर्स क्या है फॉर एग्जाम्पल? लेट्स सी। लिखिए, इसको नोट करिएगा क्योंकि ये नोट करना, आगे नोट करिएगा, पहले समझिए पहले तो। इफ आई हैव टू टॉक अबाउट 10 के फैक्टर्स, कितना फैक्टर्स है 10 के? यस, 10 के फैक्टर्स 4 है, तो इनका प्रोडक्ट निकालना है मुझे। प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या होगा? मैं इसको मल्टीप्लाई कर लूं, इसको मल्टीप्लाई कर लूं, तो क्या ये 10 × 10 हो गया? यस, तो क्या ये 10 स्क्वायर हो गया? फैक्टर्स कितने हैं? 4। 20 के साथ देखते हैं व्हाट इज हैपनिंग विद 20। ओ
यार ये हटेगा कैसे? ब्रश हटता है क्या? नहीं, बहुत ही मसला है यहाँ पे। काट दूं? 1 2 4 5 10 20। तो इसको अगर इसका प्रोडक्ट निकालना है, 4 इंटू 5 भी 20 है, 2 इंटू 10 भी 20 है, 1 इंटू 20 भी 20 है। बन रहा है ऐसे? सो इट इज 20 इंटू 20 इंटू 20 विच इज 20 क्यूब। हाउ मेनी फैक्टर्स? 1 2 3 4 5 6 फैक्टर्स 6 है। यहाँ पे फैक्टर्स 4 थे। पावर हाफ है ऑफ द नंबर। छोटे नंबर्स तो ऐसे पता चल जाएंगे। If the numbers are large, what will you do? So we don't have to worry. This is the basic idea, right? If you have to make the product of all the factors of the said number, और ये क्यों हो रहा है? Obviously because all the numbers are, all the number of factors are even. सबको आपस में मल्टीप्लाई होके, किसी दो नंबर को आपस में मल्टीप्लाई होके वो नंबर बनाना है। So half the time वो नंबर बनेगा। नई बात समझ में आई? क्योंकि हवा में बोल देता हूं मैं। 10 के 4 फैक्टर हैं, ठीक है? 4 फैक्टर का मतलब ही है कि दो फैक्टर आपस में मल्टीप्लाई होके एटलीस्ट ट्वाइस विल मेक 10। इस केस में छोड़ दो एटलीस्ट ट्वाइस, मेरे को बोलना ही नहीं चाहिए था। चार फैक्टर्स होते हैं। वी सॉ द फर्स्ट टाइम कि प्राइम फैक्टर्स के केस में एक कम क्यों हो रहा है? बिकॉज टू कम टू द नंबर सम टू फैक्टर्स विल हैव टू बी मल्टीप्लाइड, राइट, टू कम टू द सेम नंबर। ठीक है? अब जैसे 50 के फैक्टर्स बोलो कितने हैं? 1 है, 2 है, 4 भी है। 4 कैसे है? 5 है, 10 है, देन 25 है, 1 2 3 4 5 तो 6। 6 फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई होके 50 बनना है। कुछ कुछ क्या क्या बन रहा है? ये और ये। ठीक है? सो देयर हैज टू बी 2 पेयर्स, 1 पेयर बेसिकली एवरी टाइम that will correspond to the same number. So if there are 20 factors, how many pairs will be there? 10 pairs will be there. That will make that number. If there are 50 factors, how many pairs will be there? 25 pairs will be there. That will make the number. पूरी लिस्ट बनाओगे तो वो नंबर होता रहेगा मल्टीप्लाई। तो उसमें 4 इंटू 4 करते हैं। अगर 16 है तो वो आपस में करेंगे, राइट? बट प्रोडक्ट के केस में, परफेक्ट स्क्वायर उसके केस में हम बाद में बात करेंगे अभी, बट इधर बात कर रहे हैं पहले। परफेक्ट स्क्वायर के केस में अलग बात करेंगे। बट इन जनरल व्हाट इज हैपनिंग? वी मेक अ पेयर टू गेट द नंबर। सो ऑल द फैक्टर्स विल हैव टू बी डिवाइड बाय 2 टू गेट द नंबर ऑफ पेयर्स, है ना? और उतने पेयर हैं तो मल्टीप्लाई होके प्रोडक्ट निकलेगा ही। नई बात समझ में आ रही है? किसको नहीं आ रही है हाथ उठाएं। क्या नहीं आ रहा है समझ में? प्रोडक्ट का मल्टीप्लाई करना है मैडम, प्रोडक्ट निकालना है फैक्टर्स का। तो मैं 1 इंटू 2 इंटू 5 करूं या 2 इंटू 50 करूं, बात तो एक ही रहेगी। तो मैंने वो 2 इंटू 50 वाला कॉन्सेप्ट ले लिया। इंस्टेड ऑफ 2 इंटू 50 आई एम डूइंग 50 इंटू 50 इंटू 50 फॉर माई इजी कैलकुलेशन। और कुछ नहीं किया मैंने। सर 50 वाले के 6 हो जाएंगे ना? 50 के 6 हो रहे हैं सर, तो 3 पेयर बन गए। 50 इंटू 50 इंटू 50 टोटल प्रोडक्ट। यस और नो? जिसने भी पूछा था 3 पेयर हुए ना सर? 3 पेयर तो बोल रहे हैं। 6 फैक्टर 3 पेयर, 8 फैक्टर्स 4 पेयर, 10 फैक्टर्स 5 पेयर, 16 फैक्टर्स 8 पेयर। यस, तो वो प्रोडक्ट बनेगा ही। इफ देयर आर 16 फैक्टर्स ऑफ लेट्स से 20, then the product of all factors will be 20 raised to power 8 because we are going to multiply 28 times. जीरो के केस में मतलब किसी के भी सर, किसी के भी, जब भी इवन फैक्टर होंगे। ठीक है? 24 के ले लो फैक्टर्स।
और कौन सा होता है? 8 भी है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, तो करो 8 3 24, 6 चक 24, 12 दूनी 24 और ये 24. When you multiply, I can write it like this by 1 into 24 into 2 into 12 into 3 into 8 into 4 into 6. वही तो बात है. And I can write it as then 24 24 24 24. विजुलाइज करिए तब याद रहेगा, रटिए मत. सिंपली विजुलाइज. इज दिस वर्किंग आउट नाउ? कुछ नहीं लिखा है, इसको रीअरेंज करके लिखा है मैंने. इसी को रीअरेंज कर दिया इस तरह से. तो सारे फैक्टर्स का अगर मैं वो कर लूंगा तो ये निकल के आएगा हमेशा, ऑलवेज. राइट? सो नंबर की पावर factors by 2. The product of factors of 24 is going to be 24 raised to the power 8 by 2 because it has 8 factors. Product of factors of 12 is going to be 12 raised to the power 6 by 2. We saw 12 has 6 factors. That is 3. Getting the point? कुछ चीजें थोड़ी सी समझनी भी है, कुछ चीजें याद भी रखनी है क्विकर उसके लिए. बट मुश्किल तो नहीं लग रहा है कुछ इसमें? क्लियर है? मतलब सर सर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने का, उसके बाद डिवाइड बाय 2 करने का, और जो नंबर है उतनी बार मल्टीप्लाई कर लेने का. दोबारा बोलो सर. टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने का, हाँ डिवाइड बाय 2 करने का, और जो नंबर है उतनी बार मल्टीप्लाई कर देने का. हाँ बिल्कुल, वेरी गुड. जिस्ट यही है, ये है जिस्ट. लिख लीजिए कहीं, नोट कर लीजिए. थोड़े से ये फैक्टर्स और पेयर्स बना लोगे तो जब रिवाइज करोगे तो एकदम विजुलाइज हो जाएगा, अगर नहीं बनाए हैं तो किसी ने. प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ n is n raised to the power total factors upon 2. बिकॉज यूपीएससी इस टाइप के एक दो क्वेश्चन पूछ चुका है. ऑड होंगे तो अभी बात करेंगे उसकी. ऑड होंगे तो करके दिखाइए, फिर देखते हैं. ऑड सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर के केस में होंगे. सो 16 है फॉर एग्जांपल. यस, so there has to be a pair 4 into 4, but that is not there. So if you can understand what a perfect square is, you do the whole thing 16 की पावर this माइनस नहीं अपॉन 4. प्रोडक्ट निकालना है क्योंकि एक 4 एक्स्ट्रा कर दिया. बताता हूं अभी. 16 फैक्टर्स क्या है? 1 2 4 4 8 एंड 16. मेक सेंस? 1 2 4 है ना? सो है तो ये फैक्टर्स तो नहीं है, काउंट तो ऐसे ही करते हैं. सो आई मल्टीप्लाई दिस एंड देन मल्टीप्लाई दिस. राइट? सो इट शुड बी 16 क्यूब, बट बिकॉज आई हैव टेकन 1 4 एक्स्ट्रा एज अ मल्टीप्लीकेशन, लेट मी डिवाइड द होल थिंग बाय 4. आई बात समझ में? किसी को नहीं आई समझ में? फटाक से बता दिया मैं. दोबारा बताता हूं. व्हाट आर वी डूइंग? 16 के फैक्टर्स क्या है? 1 2 4 8 16. What does our formula say? That the product should be 16 raised to power 5 by 2. But 5 by 2 is not possible. It has to be 6 by 2. Right? When we are talking only about even factors and all. है ना? So ये 6 by 2 कैसे होगा? ये pairs कौन से बन रहे थे? ये what is missing in this? 1 extra 4 is missing. 25 होता तो 5 would have been missing. 121 है तो 11 would have been missing. Perfect square के केस में, है ना? So if I have to fit this formula, let's say, right? जो अपना वाला formula है ये वाला, तो it has to be first of all 6. So can I not see कि what is that missing factor? I know that this 4 is missing. है ना? I know that कि ये 4 missing है क्योंकि डबल काउंट होना था, सिंगल काउंट लिया है. तो अगर मैं इसको 4 को 2 बार लिखूं
the way it is, then I have those 6 factors, then this formula works. Yes, but इसमें I have additionally multiplied 4. So in the total outcome, I have to adjust for that. So जो मैंने multiply किया था पहले, I'll have to remove that. तो उससे जो final outcome है उससे मैं divide कर दूंगा उसको. +1 कैसे कर दीजिए? प्रोडक्ट बनाना है मुझे. 2 into 3 into 4 +1/2 से कैसे हो जाएगा मुझे बताओ, कैसे हो जाएगा? और 16 की पावर 2.5 कैसे निकालेगा? सर इसमें यही कर सकते हैं ना अपन. 4 बाहर ले लिया. हाँ हाँ, बात तो एक ही है सर. मैं ऐसे पकड़ रहा हूं, आप 2 राउंड में मार रहे हो. इट्स द सेम थिंग ओनली सर. जो सर फॉर्मूला है वो याद रखो सर. परम्यूटेशन में करते हैं सर, वही किया है सर. अपॉन में वो करते हैं, ठीक है, क्योंकि हम प्रोडक्ट निकाल रहे हैं. परम्यूटेशन सर कॉम्बिनेशन में हम नंबर ऑफ पेयर्स निकालते हैं, इसलिए वहां पे अपॉन 2 कर देते हैं. गेटिंग द पॉइंट? यहां तो हम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं. हमने प्रोडक्ट में 4 एक्स्ट्रा ऐड किए, मल्टीप्लाई किया है, तो उस 4 को एक्स्ट्रा दोबारा एडजस्ट भी तो करना होगा. अब आया समझ में मैडम? अजीते आ गया? पीछे किसी को डाउट है? ऑनलाइन गाइस, इज दिस क्लियर? सिर्फ कॉन्सेप्ट सर समझ 5/2 जाएंगे, को लॉजिक समझ जाएंगे, तो यू विल बी एबल टू फिक्स एनीथिंग. इफ यू ट्राई टू क्रैम, यू विल नॉट अंडरस्टैंड, यू विल नॉट रिमेंबर एंड यू विल मेस इट अप देयर. इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि विजुलाइज करके समझाएं चीजें, क्यों सर क्यों कर रहे हैं ये, सो दैट वहां दिमाग चले. हाँ जी, सर ये एक्स्ट्रा बोलते हुए तो एक्स्ट्रा रुक समझ में जाएगा. आया कि जब मैं हमने बोल रहा हूँ बीच में सर ना करा करो, रुक जाया करो. अब बोलो. सर आपने जो ये एक्स्ट्रा 4 जो लिया ना वो समझ में आया. आगे आगे 6/2 लिया आपने, तो फिर आपने डिवाइड बाय 4 क्यों किया? हाँ, डिवाइड बाय 4 क्यों किया सर? डिवाइड बाय 4 क्यों किया? क्योंकि ये 4 एक्स्ट्रा लिया ना भाई. फैक्टर्स तो ये 5 है ना. हाँ सर. तो मैंने अपने आसानी के लिए कि मैं ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकूं, मैंने इंटू 4 कर दिया, क्योंकि ये 4 कॉमन आ गया था यहाँ पे. उस दिन बताया था प्राइम ये परफेक्ट स्क्वायर के केस में क्या होता है. ओके सर. तो जैसे ही मैंने 4 लिखा, आई हैव 6 नाउ, so I have 3 pairs of 16. That means it has the product is 16 cube. But since I have added a 4 for my convenience, I have to remove that 4. I have multiplied a 4 for my convenience. I have to adjust for that 4. तो मैंने divide किया. Similarly, अगर मैं मान लो ये 36 के लिए करता हूँ, तो क्या होगा? 1 2 3 6, 4 भी तो आएगा. 4 6 12 9 भी आएगा. ऑब्वियसली 9 भी 9 आएगा. भी आएगा. 9 12 एंड 36. 1 2 3 4 5 6, एक और आएगा ना 18. 18 भी आएगा. दोबारा लिखूंगा साफ साफ, नहीं तो उड़ जाएगा सब. 1 2 3 4 6 9 12 18 36. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 है, राइट? तो 9 में हम क्या देख रहे हैं, क्या हो रहा है? रुक जाओ. 18 into 2 36. 36 into 1 36. लेट मी राइट इट हियर. एक 36, 2 36. तीसरा 36 कहाँ है? 12 into 3 36. चौथा 36 कहाँ है? 36. क्या बचा? 6. यस, आई कैन नॉट अप्लाई माई फॉर्मूला. कैसे मल्टीप्लाई करूंगा? नहीं कर पाऊंगा मल्टीप्लाई. सो व्हाट डू आई डू? मेरे को फॉर्मूला फिट करना है. आई डोंट वांट अ डैंगलिंग 6. जस्ट टू अप्लाई द फॉर्मूला, लेट मी ऐड अनदर 6 हियर, जो परफेक्ट स्क्वायर का है. ओनली दैट. तो ये 36 हो गया. हाउ मेनी पेयर्स? 1 2 3 4 5. यस. सो द प्रोडक्ट of 30 factors of 36 is 36 to the power 5. But now I have added this 6 unnecessarily extra to ease my calculation. So let me also adjust for that. मैं एक ये divide भी कर दूं. ठीक है? This could also be written as
6 इंटू 36 रेज टू द पावर 4 सब्ट्रैक्ट करने के डिवाइड करने के बाद आई टेक वन 36 सेपरेटली आई डिवाइड बाय 6 इंटू 36 रेज टू द पावर 4 जयेश नहीं चमका 36 की पावर 5/6 ये यहां तक ठीक था 36 इंटू 36 की पावर 4/6 ये ठीक है लिख सकते हैं ऐसे पक्का the options can be in any format na you have to know that the options could be in the format of 36 raised to power by 6 option could be in the format of 6 into 36 raised to power 4 also so simplification कर रहे हैं is this clear सर कितने फॉर्मूले याद रखने हैं क्यों रखने हैं जिसको याद हो जाए रख लो जिसको याद नहीं हो रहा उसको समझा दिया सिंपल है ना जिसको याद हो रहा है रख लो कोई इशू नहीं है कैसे बनाओगे डायरेक्ट 36 की पावर 5 तो हमने वो निकाला है हमें 36 के फैक्टर्स बताने थे 9 आ रहे हैं अंडर रूट 36 पावर 9 उड़ जाएंगे लोग बिल्कुल ठीक है अंडर रूट 36 पावर 9 बट उड़ जाएंगे सब लोग यहाँ पे हर केस में यही आएगा सर 4 + 1 ही तो किया है हमने 4.5 पावर डालनी थी हमें वो करना तो वही है बट जो एक तरीका है उससे रखेंगे बच्चे तो ठीक खुश रहेंगे टेंशन नहीं है लाइफ में छोड़ दो भूल जाओ कुछ नहीं है बाद में अलग से बात कर लिया अगर भाई तू मेरे साथ यहाँ सब कंफ्यूज हो जाएंगे भूल जाओ सब भूल जाओ ये ऐसे तरीका याद है ऐसे याद रखो बस कोई जनरलाइज फॉर्मूला नहीं है अरे बात नहीं बनाना मुझे कंफ्यूज हो जाएंगे बच्चे सारे गणितज्ञ यहीं बैठे हैं जिसको आ रहा है अपने तक रखो खुश रहो एक वो 30 सेकंड और बचा लेना एग्जाम में सर तो ऐसा नहीं कर सकते 36 रेज टू हाँ तो ऐसा नहीं कर सकते 36 रेज टू 6/2 डिवाइड बाय 6 36 क्या 36 रेज टू 6 डिवाइड बाय 2/6 जिस लाला, टाइम एक लास्ट ही टाइम समझ पहले ले। वाले सम में किया 16 रेज सुन एक ही समझ ले वैसी बड़ी दिक्कत है समझने में यहाँ पे एक ही समझ ले जो समझाया है ये आसान तरीका है सर we are using the same method getting an easy way out don't get too confused okay you'll have to remember only one formula in this regard rather than two formulas for different types of the same question एक फॉर्मूला से कैसे करें अगर फॉर्मूला याद करने की नौबत आ ही जाती है तो दैट इज द पॉइंट हियर minimum utilization of formulas maximum utilization of logic is the objective of this class नहीं तो फॉर्मूले की शीट तो मैं भी 250 फॉर्मूले बना के दे देता हूँ कि इसको रट लेना नहीं हो पाएगा वो कुछ so we are trying to minimize the formulas as much as possible just understand visualize and you'll be able to solve that's the whole idea ठीक है फॉर्मूले याद करने हैं तो उस तरफ जाइए नहीं सामने वाली क्लास में वहां फॉर्मूले याद कराए जाते हैं ठीक है चलिए 100 के फैक्टर्स के प्रोडक्ट बताइए ऐसे नहीं हाथ चलाना पड़ेगा थोड़ा सा फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 100 10 raised to 9 10 रेज टू 9 ऑप्शंस कुछ ऐसे हैं Sir, 10 raised to 19. 10 रेज टू 19 सर ऑप्शन बी ऑप्शन बी कुछ लोगों का ऑप्शन ए आया कुछ लोगों का ऑप्शन बी आया 19 भी आया किसी का डी भी आ गया दोबारा करिए सोचिए ए आएगा ए सर ए आएगा क्या कर रहे हैं आप लोग इतने फैक्टर्स ऐसे क्यों लिख रहे हैं 100 के फैक्टर्स कितने बन रहे हैं सर नेगेटिव वाले भी तो कंसीडर होंगे ना 100 के फैक्टर्स कैसे लिखोगे ये लिखोगे वो क्यों लिस्ट बनाते फिर रहे हो फैक्टर्स बाय 2 ही तो करना है
इतना क्या फायदा हो सिखाने का? वाई डू यू हैव टू लिस्ट आउट द एंटायर सेट ऑफ फैक्टर्स? 100 इज 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर. नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने? 3 इंटू 3, दैट इज 9. Yes, that is 100 raised to the power 9 by 2. N raised to the power factor by 2. And what is n here? It is 10 square. So 10 raised to the power 9. क्योंकि इस फॉर्मेट में पूछा है. Yes, that is all. लिस्टें क्यों बना रहे हैं आप लोग? सब लगे हैं लिस्ट बनाने में. क्यों करना है सर डिवाइड? वो तो हाँ, सर हमें पावर में निकालना है. हम 9/2 लिखते, उधर भी हम 36 वगैरह में लिख ही रहे थे ना ऐसा. 5/2 एंड ऑल, इट वाज नॉट वर्किंग आउट फॉर अस. तो ये वही 9/2 है अगर हम पावर लगाएं, है ना. तो उस तरह से आपने सिंपल सिंपल रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए. सम कैसे निकालते हैं? सम के लिए कोई बहुत लंबा फॉर्मूला है, वो नहीं करेंगे याद. इफ यूपीएससी इज आस्किंग अस सम, दे विल आस्क फॉर अ स्मॉल नंबर ओनली. फैक्टर्स लिस्ट आउट करिए, ऐड कर दीजिए. दैट्स द ओनली वे. डोंट गो फॉर एनी फॉर्मूला. सिंपल रखिए उसको. ठीक है, यू जस्ट वेरीफाई कि 9 फैक्टर है, 9 फैक्टर लिस्ट आउट करिए, सम कर दीजिए. दैट्स ऑल. ये कर लेना घर पे, शीट मिली जाएगी. अब ये है एक क्वेश्चन. n स्क्वायर हैज 13 फैक्टर्स विच. ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, समझ के थोड़ा पेन चलाने से पहले दिमाग चलाने का है. हाँ बस अब इनको ऐड कर देना, 9 जो बन गए. देखें क्या कह रहा है ये. n स्क्वायर हैज 13 फैक्टर्स. n स्क्वायर हैज 13 फैक्टर्स विच आर स्मॉलर देन n. क्या मतलब है इसका? n square has 13 factors. ये थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड पे क्वेश्चन है, जस्ट टू सी इफ यू कैन अंडरस्टैंड थिंग्स. ये यूपीएससी का नहीं है, किसी दूसरे एग्जाम का है. बट लेट्स सी इफ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज इट ट्राइंग टू से. n square has 13 factors which are smaller than n. n square has 13 factors which are smaller than n. क्या बोल रहा है ये? 10 square has so many factors which are smaller than 10. ऐसा बोल रहा है. 10 स्क्वायर क्या है? 100. 100 के फैक्टर्स कितने होते हैं? 1 2 4 5 10 20 25 50 100. 100 का फैक्टर 100 नहीं होगा. अभी मैं 100 के फैक्टर्स बोल रहा हूँ. 100 factors of 100 or factors of 10 square are these 9 factors. The question is saying n square has 13 factors which are less than n. That means n square has so many factors which are less than 10. कौन से less than 10 है? These are less than 10. And how many are more than 10? Same number. And the n itself is in between. And it will be true for every time because it is a perfect square situation. There will be 9 factors. The number itself will always be in between. Right? 4 factors smaller than the number, 4 factors larger than the number, or half the factors smaller than the number, half the factors larger than the number. It will always happen. ठीक है, ये ध्यान रखना है. अब मान लो ऐसे ही 36 की बात होती. 6 स्क्वायर 1 2 3 6 4 हमेशा रह जाता है मेरा. 6 12 हाँ 18 36. तो इसमें क्या हो रहा है? 4 factors smaller than n and 4 factors larger than n, and n is in between. So in any perfect square situation 81 ले लो, ज्यादा बड़ा हो जाएगा. ले लो, चलो क्या है, बनाओ फैक्टर. 1 3 9 18. 18 से कैसे आ जाएगा 81? क्या हुआ ये?
1 3 9 27 and 9 into 9 81 बस हो गया ना 81 5 फैक्टर्स हैं सो ये है 9 स्क्वायर half the factor less than n half the factor more than n it will always be true yes now come to the question when it says n square has 13 factors less than n then how many factors of n square will be there 27 very good 6 कैसे हाँ तो अबे n स्क्वायर के 13 फैक्टर हैं जो n से छोटे हैं तो 13 बाद में होंगे और n भी है सो टोटल 27 फैक्टर्स अब क्वेश्चन आसान सो n स्क्वायर हैज इन टोटल 27 फैक्टर्स ये कुछ चीजें याद करनी पड़ेंगी अनफॉर्चुनेटली यू विल हैव टू राइट इट डाउन अनलाइकली है कि ऐसा क्वेश्चन पूछेगा यूपीएससी थोड़ा सा इनसाइट ज्यादा चाहिए इसमें बट नाउ यू नो ओके a perfect square will always have same number of factors lesser than the number and higher than the number and the number being in between and that works very well because all the factors will be odd number factors yes एक बीच में रहेगा आधे इधर आधे इधर बाकी n के पीछे ठीक है that's the idea so 27 factors हैं so now find the maximum number of factors of n cube now I know there are 27 factors अब उसको कैलकुलेट कर लेंगे उसी तरह से करके दिखाइए लोगों ने निकाल भी दिया है वेरी गुड आरोही आयुषी करिए करिए ट्राई करिए लेट्स सी मैक्सिमम निकालना है आयुषी दोबारा देखिए दोबारा देखिए यहां जिसने बोला है अभी कितने दोबारा देखिए ट्वेंटी सेवन की क्या कंडीशंस बन रही हैं सबसे पहली कंडीशन क्या है दूसरी क्या है तीसरी क्या है अब करिए जरा क्या हुआ ये कितने फैक्टर हुए यहाँ पे n स्क्वायर के 27 फैक्टर हैं तो n स्क्वायर इज a की पावर समथिंग 26 यहाँ पे क्या है a की पावर 8 b स्क्वायर यहाँ पे क्या है a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर दिस n स्क्वायर यस एबीसी फॉर्मेट में ऐसी तो बनेगी किसी किसी की पावर होंगी इशू नहीं आ रहा है समझ में इज दिस क्लियर पीपल पीछे पक्का सबको समझ में आ रहा है हाँ बताइए सर कुछ भी रैंडम हो सकता है नंबर क्योंकि n का नहीं पता ना हमें ऐसे ही लिख दिया हमने आप 2 भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि हमें पावर से मतलब है पूछा है मैक्सिमम नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ n क्यूब नीचे कुछ भी उससे मतलब नहीं है इसलिए एबीसी कर दिया 2 लो 3 लो 5 लो 9 लो 9 मत लो 7 लो 11 लो कुछ भी लो फर्क नहीं पड़ता उससे दैट इज द पॉइंट n स्क्वायर का इन्हें बताया कि n स्क्वायर छोटा है n स्क्वायर बड़ा है n स्क्वायर कैन बी एनीथिंग सो दीज नंबर्स कैन बी एनीथिंग एंड दैट इज व्हाई वी आर टेकिंग वेरिएबल्स बिकॉज वी डोंट केयर ठीक है तो अगर ये n स्क्वायर है तो n कितना हुआ a की पावर 13 यस इधर n कितना हुआ b सॉरी हाँ यस एंड इधर a b c क्लियर पूछा गया है फैक्टर्स ऑफ n क्यूब तो एक स्टेप और बढ़ना पड़ेगा आगे n क्यूब क्या बनेगा a की पावर 13 इंटू 3 दैट इज 39 क्यूब में मल्टीप्लाई कर देते हैं पावर को यहां पे n क्यूब क्या बनेगा a की पावर 12 b क्यूब यहां पे n क्यूब क्या बनेगा a क्यूब b क्यूब c क्यूब ये तो आता है सबको
पावर्स एक बार बताऊंगा आगे, टेंशन मत लीजिए, बट इतना तो आता है। यस तो यहाँ कितने फैक्टर्स हुए हैं? 40। यहाँ कितने फैक्टर्स हुए? 52। यहाँ कितने फैक्टर हुए? मैक्सिमम फैक्टर्स ऑफ n क्यूब कितना होगा? 64। क्वेश्चन सेम ही है, वी आर ओनली अप्लाइंग द सेम लॉजिक ऑलवेज, देयर इज नथिंग न्यू। विजुअलाइज करना नहीं आ रहा है समझ में? स्लो आ रहा है समझ में? हाँ तेरे को पूछ रहा हूँ, आ रहा है सर? तो लग नहीं रहा है चेहरे से, टेल इट टू योर फेस कि मुझे समझ में आ रहा है, ताकि मुझे समझ में आए कि आपको समझ में आ रहा है। मैक्सिमम पूछा है मैडम, या तो मैक्सिमम पूछेगा या मिनिमम पूछेगा, दैट इज द ओनली वे टू चूज। यस if n square has 13 factors then it will be a different idea, so you have to first find n के factors कितने हैं। ठीक है, n square 13 factors would mean n square is a raised to the power 12, n will be a raised to the power 6, n cube will be a raised to the power 18, factors would be 19, simple। इसमें फैक्टर्स निकालने हैं सर, तभी हम नंबर डाल रहे थे 2 3 4, नंबर निकालना था। अब हमें क्योंकि फैक्टर्स निकालने हैं, मुझे सिर्फ पावर से मतलब है, नीचे कुछ भी होता रहे। समझ गए? इज दिस क्लियर अजीत? इफ इट वाज ओनली इफ n square has, if the question was n square has 13 factors, yes, instead of n square has 13 factors smaller than n, if the question would simply be n square has 13 factors, that means n square is a raised to the power 12, so n is a raised to the power 6, yes, n cube will be then a raised to the power 18, factors will be 19। ठीक है आकाश, अंडरस्टूड? आपको आया समझ में? पक्का? मैडम आपको ट्री बना रही हैं आप जो, व्हाट डिड यू नॉट सर अंडरस्टैंड? ऐसा एक और क्वेश्चन लो ना। n अगर a raised to the power 13 है, हमने पूछा n क्यूब बताओ, तो n क्यूब a raised to the power 39 होगा, 13 into 3, ये समझ में आता है? पक्का? a स्क्वायर को अगर मैं क्यूब करता हूं तो ये a की पावर 6 हो जाता है, ये तो पता है। तो ऐसे ही a की पावर 13 को अगर मैं क्यूब करूंगा तो 13 into 3 39 हो जाएगा। यहाँ पे n था a raised to the power 4b, यार a की पावर 39 के कितने फैक्टर होंगे? 39 plus 1, वो a plus 1 b plus 1 वाला है, उसमें क्या है? ठीक है, और क्लियर? देन स्टॉप टॉकिंग। चलिए ये बताइए, देखें कैसे करेंगे इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी विच, think which type of number will have only 3 factors? Think which type of number will have only 3 factors? परफेक्ट स्क्वायर के तो 5 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं। प्राइम नंबर, इफ देयर आर प्राइम नंबर का परफेक्ट स्क्वायर, इफ देयर इज अ प्राइम नंबर का परफेक्ट स्क्वायर, उसके फैक्टर हमेशा 3 होंगे। फॉर एग्जाम्पल 16, नहीं सॉरी क्या कर रहा हूं मैं, फॉर एग्जाम्पल 25, फैक्टर्स क्या है? 1 5 25। 9 फैक्टर्स क्या है? 1 3 9, राइट? देन 49 1 7 49, देन 121 1 11 121। सो 3 फैक्टर्स जिस भी नंबर के होंगे, ठीक है, 4, they will always be a perfect square first of all, so बाकी सारे नंबर तो हट ही जाते हैं, and there is a very specific perfect square, otherwise perfect square can have 5 factors 7 factor 9 factor 11 factor, कोई भी ऑड नंबर हो सकता है, बट आई एम सेइंग 3 फैक्टर्स ही हों। तो एक तो बात मुझे पता ही है, ऑड फैक्टर्स है तो परफेक्ट स्क्वायर तो होना ही है, बट ऐसे कौन से पिक्यूलियर परफेक्ट स्क्वायर हैं जिनके सिर्फ 3 ही फैक्टर हो सकते हैं, वो प्राइम नंबर के परफेक्ट स्क्वायर माने जाएंगे। यस, so only prime numbers perfect square will have always 3 factors, nothing less nothing more,
गेटिंग द पॉइंट? ठीक है, आई बात समझ में? तो अब क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ टू डिजिट नंबर विच हैव ओनली थ्री फैक्टर्स. टोटल नंबर ऑफ टू डिजिट नंबर. सो 11 से लेके 99 तक जो भी परफेक्ट स्क्वायर हैं जो प्राइम नंबर के हैं, दैट इज द ओनली आंसर. यस, क्या क्या आंसर हो गए? 25, 49, 49 बस. 5 7, 3 का 9, तो 9 तो टू डिजिट नहीं है, तो बोल दिया ना नहीं है, फिर 3 डिजिट हो जाएगा. इसके बाद अगला कौन सा है? 121, ये हो नहीं सकता. इससे पहले कौन सा है? 9, ये हो नहीं सकता. टोटल नंबर ऑफ टू डिजिट नंबर विच हैव ओनली टू फैक्टर्स, थ्री फैक्टर्स, ओनली दीज. 36 के कितने फैक्टर होते हैं? बहुत सारे देखे थे 36 में फैक्टर, जो परफेक्ट स्क्वायर बीच में है एक और. ठीक है, 16 के फैक्टर कितने होते हैं? बहुत सारे होते हैं. एनी अदर परफेक्ट स्क्वायर विल हैव मोर देन 3 फैक्टर्स. 81 के गिन लो, 64 के गिन लो, दे विल हैव मोर फैक्टर्स. सो सिंपल आइडिया, ये समझना आना शुरू हो जाना चाहिए. 3 factors, odd factors, first of all, perfect squares, and only 3 factors: number, the square root, and 1. It will only be prime factors, क्योंकि वो 5 के ही तो बट रहे हैं बाकी 25 में. That is the point. There is nothing else to multiply it only with. लिख लो इसको कहीं पे. 3 numbers with 3 factors only will always be numbers with 3 factors only will always be perfect square of prime numbers, will always be perfect square of prime numbers. ठीक है, क्लियर? अगर ये समझने में दिक्कत हुई है तो अगला समझने में और दिक्कत होगी, क्योंकि यहां पे एक थोड़ा सा ट्रिकीनेस है जो याद ही करना है. सर, हाँ जी. नेट बहुत गंदा जा रहा है. हाँ, नेट प्रॉब्लम बहुत हो रही है. क्या बहुत हो रही है? लैग प्रॉब्लम बहुत हो नेटवर्क रही है की. यार. कुछ इंटरनेट का इशू है. आपको रिकॉर्डिंग भेज देंगे आज ही, एक बार उसको देख लीजिएगा. रिकॉर्डिंग में लैग नहीं होगा. एक्सपोनेंट वैसे अभी कर नहीं पाओगे, कल ही करते हैं. लेट्स डू एक्सपोनेंट टुमारो. इट्स ऑलरेडी 1:30 एनीवे, बिकॉज इट विल टेक अ लिटिल एफर्ट समझने में. ठीक है, ये फैक्टोरियल 10 ये गलत गलत बना हुआ है फैक्टोरियल का साइन. फैक्टोरियल ऐसे होता है या ऐसे होता है? व्हाट इज फैक्टोरियल 10 और फैक्टोरियल ऑफ एनी नंबर? 1 to 10 को मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज फैक्टोरियल. वी नो दैट. फैक्टोरियल 10 अगर है, ये फैक्टोरियल 10 होता है. फैक्टोरियल 4 अगर बोल रहे हैं, फैक्टोरियल ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा. फैक्टोरियल 6 कर दोगे, ये हो जाएगा. हाँ, इनटू वाला समेशन टाइप हो गया. वेरी गुड. ठीक है, तो ये इनटू वाला समेशन टाइप हो गया. ये फैक्टोरियल्स होते हैं, राइट? इसको कल करेंगे, क्योंकि अभी गर्म हो जाएगा दिमाग थोड़ा सा. इंजन ऑलरेडी गर्म है. ठीक है, सो टुमारो विल डू एक्सपोनेंट्स, टुमारो विल डू कैलेंडर एंड क्लॉक्स, और एक्सपोनेंट्स के साथ हमारा नंबर सिस्टम भी खत्म हो जाएगा. ये एक टॉपिक बीच में मिस हो गया था. वी आर कवरिंग दैट. इससे क्वेश्चन आते हैं, और क्वेश्चन कैसे आते हैं? ऐसा क्वेश्चन आता है. इस क्वेश्चन के लिए वो कॉन्सेप्ट समझना ही पड़ेगा, और वो कॉन्सेप्ट समझने में बहुत रोना आएगा. और ये 2022 का ही क्वेश्चन है, सो वी कैन नॉट टेक चांसेस आल्सो. ठीक है, नहीं टफ नहीं है सर.
टफ कुछ नहीं है सर, जब मैं पढ़ा रहा हूँ टफ कुछ नहीं है, एक बार समझना है बस। अभी तक कुछ टफ लगा है क्या? इतनी मैथ्स पढ़ ली हमने। चलो विल मीट अगेन टुमारो, होपफुली दिस प्रॉब्लम विल नॉट आल्सो बी देयर। 3 o'clock देयर इज इकोनॉमिक्स क्लास। आई एम सॉरी, मैं 2 दिन बहुत आलस में इकोनॉमिक्स क्लास नहीं ली मैंने, सैटरडे एंड संडे, बिकॉज आई थॉट एक बार तो संडे में ही मना लूँ। एंड टुडे ऑनवर्ड्स देयर विल बी रेगुलर इकोनॉमिक्स क्लासेस, डेली करके खत्म करेंगे। एंड देयर वोंट बी एनी, होपफुली अगर ये क्लास हमें अलाउ करेगी तो क्लास में ब्रेक नहीं होगा, ठीक है? अगर होगा तो वहाँ चादरें डलेंगी और सब लोग नीचे बैठेंगे, क्योंकि वहाँ सेटिंग हो चुकी है, अब कुछ और करने का कहाँ स्कोप नहीं है, बट क्लास कैंसिल नहीं करेंगे, ठीक है? हाँ, वो साथ में क्लास के साथ साथ मिलेगा मैडम डेली, ठीक है? तो हैंड आउट जो भी क्लास में मिलने हैं वो साथ में मिलेंगे क्लास में आपको, दैट्स द पॉइंट। सो बी रेडी टू सिट ऑन द फ्लोर ऑल्सो, बिकॉज वी विल नॉट कैंसिल द क्लास। एंशिएंट आप लोग टाइमली कर रहे हैं, सब लोग जो यहाँ पे टीसीपी में है या टीसीपी प्रीलिम्स में है, जैसे भी है, एंशिएंट टाइमली करिए अपना। जैसे ही एंशिएंट खत्म होगी एक टेस्ट होगा, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट एंड आई होप यू आर रिवाइजिंग द नेक्स्ट मॉर्निंग, ठीक है? सम पीपल केम टू मी सेइंग कि सर थोड़ा अभी ऑप्शनल चल रहा है, राइट? सो थोड़ा सा 1-2 घंटा एक्स्ट्रा निकाल के पुश योरसेल्फ अ लिटिल मोर। Whatever ancient reading we have given, it's hardly 2.5 hours, 3 hours का reading. Yes, the class will be economics class will be 2.5, 3 hours, 1 hour of शून्य, 1.5 hour of शून्य now. 2 hours नहीं है यार, कितना तो मैंने फिल्टर करवा दिया। We are not. चल 2 घंटे 8 हो गए, फिर भी 3 घंटे हैं, स्पेशली जब सीसैट नहीं है। इस वीक आई विल ट्रैक यू गाइस, अगर आप कर पा रहे हैं सीसैट के साथ, नहीं कर पा रहे हैं तो नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स आई विल मेक अलाउंस। जिस दिन भी सीसैट होगा एक स्लॉट खाली होगा आपका, सो दैट यू डोंट फील बर्डन्ड, है ना? ठीक है, क्योंकि मेहनत नहीं करना चाहते हैं आप लोग। तो एक्सप्लेनेशन से अगर समझ में आ रहा है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो क्विकली फोटो खींचिए ग्रुप पे डाल दीजिए, ठीक है? एक्सप्लेन इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड एंड फिगर इट आउट, इवन डिस्पाइट दैट प्लीज सेंड इट ऑन द ग्रुप, सो दैट नेक्स्ट टाइम वो गलती वो हो जाए, रेक्टिफाई हो जाए। वील मेक एन एडेंडम एंड विल सेंड इट टू यू एट द एंड ऑफ द सब्जेक्ट एवरी टाइम, सो दैट यू कैन फिक्स दैट ऑल्सो। Also, one more thing, there would be certain questions in the practice sheet which will not be from the book. Because let me be very clear, these practice sheets have been made by picking up questions of different coaching institutes, so that आपके लिए भी variety रहे. Yes, different coaching institute के test उठा लिए हमने, so that we give you different varieties. You are not limited to only our thought process. You are also exposed to different coaching thought process कि what kind of questions can be asked. राइट, उसमें PYQ भी हैं, हमारे क्वेश्चंस भी हैं, डिफरेंट कोचिंग से भी हैं। सो डिफरेंट कोचिंग से जो टेस्ट होते हैं अक्सर वो स्मार्ट बनने के लिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो जाते हैं जो बुक से नहीं होंगे, विकिपीडिया से होंगे, इधर उधर से होंगे। डोंट फ्रेट अबाउट देम बहुत ज़्यादा, राइट? 20-30% क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं। फॉर दोज क्वेश्चंस डू नॉट स्टार्ट मेकिंग नोट्स, देयर इज नो नीड। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू वांट टू रिमेंबर देम, जस्ट मार्क इट इन द सॉल्यूशन ओनली. And while revising the topic, quickly go through that sheet also every time, and whatever questions you got wrong or you could not solve, revise those questions as well along with it. ठीक है? कितने लोग 20 out of 30 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं पढ़ने के बाद? हो जाते हैं? बाकी not able to solve 20 out of 30 questions at least in the practice sheet after reading? No. How many? 19. You solved 20 only. Why, sir? Is it written optional on the practice sheet that Akash can consider these practice sheets optional? Ajita can consider these practice sheets optional. Do not make them optional, people. Right? थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी if you want to clear prelims. Once again, उसके बिना होगा नहीं। बहुत सारे साल निकल जाते हैं ऐसे, बट 1 साल अगर आप मेहनत कर लेते हैं, 5 महीने, राइट, देयर इज नो टर्निंग बैक। उसके बाद प्री निकल जाता है, ठीक है? तो देयर आर एग्जांपल्स इन दिस क्लास ओनली जिन्होंने 1-6 महीने मेहनत करी और प्री निकल गया, जो प्री अटके जा रहा था, राइट? सो दीज 4-5 months is required if you want to clear prelims, and for that you will have to do a lot of practice. Again, as I always say, we are not doing anything different. It is everything that every aspirant is supposed to do.
वी जस्ट वांट टू इंश्योर दैट यू आर डूइंग इट एवरी डे. तो मैं पेप टॉक रोज ही दूंगा, बुरी लगेगी थोड़ी सी, बट पेप टॉक मैं रोज ही दूंगा ताकि आप लोग थोड़ा सा टारगेट पे रहें. ठीक है, टारगेट पे रहेंगे तो आई कैन गारंटी, समझ के टारगेट पे रहेंगे तो आई कैन गारंटी कि प्रीलिम्स तो नहीं रुकेगा. राइट, वी विल मेक श्योर दैट यू आर रिवाइजिंग एवरीथिंग 5 times. वो मेरी गारंटी है. एवरीथिंग 5 times एटलीस्ट, कुड बी मोर ऑल्सो, बट मिनिमम 5 times तो मैं रिवाइज करवाऊंगा ही आपको सब कुछ प्रीलिम्स के लिए, इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स. वी विल मेक श्योर ऑफ दैट, डोंट वरी. ठीक है, करंट अफेयर्स भी 2-2 महीने के टेस्ट होंगे आपके. जस्ट कीप दिस इन माइंड. समबडी वाज आस्किंग मी सर टेस्ट कब होंगे. एवरी टाइम द सब्जेक्ट गेट्स ओवर देयर विल बी अ टेस्ट इमीडिएटली. फिर एमैक, एंशिएंट मिडिवल आर्ट एंड कल्चर पूरा हो जाएगा तो एक कंप्लीट टेस्ट होगा एमैक का. फिर मॉडर्न आएगा तो मॉडर्न का एक कंप्लीट टेस्ट होगा. पॉलिटी में बीच में भी एक प्रैक्टिस टेस्ट है बिकॉज पॉलिटी इज अ लेंथी सब्जेक्ट. फॉर करंट अफेयर्स एवरी 2 months, जून जुलाई देयर विल बी अ टेस्ट, अगस्त सितंबर देयर विल बी अ टेस्ट, अक्टूबर नवंबर देयर विल बी अ टेस्ट. We are asking you to do a magazine. We will give you classes and notes from our sides also, and there will be 100 questions for 2 months every time. So there will be 3 different sources. So we'll have a decent coverage of it. Yes, you'll have to put effort to remember that, without a doubt. But nobody said it's going to be easy. You're not here for easy. You chose this because it's not easy. Okay? Easy तो सब कर रहे हैं. ठीक है? So you have to understand that, you have to put that kind of effort. If you are not able to manage your optional now, forget about it. Optional is not going to help if you do not get a chance to write optional only. We can pick optional again in March, sorry. Because by March mid, you will be done with 3 rounds of revision, 4 rounds of revision for every subject. You will have enough and more confidence because we'll be done with CSAT also, we'll be done with significant current affairs also. By March mid, at least 1 year के तो current affairs हो चुके होंगे. ठीक है, we are giving you 5 days for a current affairs and 6 days for revision. So 6 plus 6, 12 days for 2 months, then 2 more days for revision, 14 days and 15-day test. So 15 दिन में 2 महीने के हो रहे हैं, हर महीने 4 महीने के हो जाएंगे. मार्च एंड तक 12 महीने के करंट अफेयर्स हो चुके होंगे आपके, जो आप मैगजीन्स कर रहे हैं. ओके, 12 months by March end, मैगजीन्स. जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, मार्च एंड तक, फेब तक की मैगजीन आएगी. सो देयर आर ओनली 9 months हियर. वील ट्राई टू इनकॉर्पोरेट अप्रैल एंड मे आल्सो मैगजीन वाइज, अदरवाइज वी आर गोइंग टू इनकॉर्पोरेट दैट इन द क्लास एनीवे. वी डिड नॉट गिव यू मैगजीन फ्रॉम जनवरी दिस टाइम बिकॉज वी आर डूइंग इट फॉर यू व्हेन वी गिव यू द क्लासेस. बट जून से तो हम कर ही रहे हैं. इफ यू गाइज आर नॉट फेड अप ऑफ करंट अफेयर्स बाय फेब एंड, बिकॉज फेब एंड तक हम फेब तक पहुंच जाएंगे ऑलरेडी. यस, 4 months in January, 4 months in February, 8 months हो चुके होंगे. जून जुलाई होगा, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, मार्च के मिड में कहीं जाके फेब की मैगजीन आएगी. सो वील ऐड अप्रैल एंड मे मैगजीन आल्सो इफ यू गाइज आर अप फॉर इट. मार्च में ही वील डिस्कस, डोंट वरी अबाउट इट. ठीक है, अगर इंतू रहेगा. देन वील हैव अ रोबस्ट प्रिपरेशन फॉर करंट अफेयर्स आल्सो. एंड स्टैटिक की गारंटी है 5 रीडिंग तो कम से कम करने वाले हैं आप लोग, कम से कम, जो कभी नहीं करी होंगी प्री से पहले ऐसे, इन दिस शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम. ठीक है, every 7th day is a revision day, designated revision day. Please make sure you are revising on that day. Do not take that day easy because that is the day that is going to make a lot of difference in your retention capacity. The moment you start skipping that day for revision, आपकी retention कम होती चली जाएगी. So please do not skip that. कुछ भी करिए उसको स्किप मत करिए. ठीक है ना. एंड यू डू एनीथिंग एक्स्ट्रा दैट यू वांट टू डू बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द प्रीलिम्स टारगेट्स दैट आर विद यू. उसके बाद आप कुछ भी करिए, आप 16 घंटे पढ़िए, आप उल्टा लटक के पढ़िए, वी डोंट केयर. बट प्रीलिम्स टारगेट ऑन दैट डे शुड बी डन विदाउट एनी एक्सक्यूजेस. पेट में दर्द हो रहा है, सर्दी बहुत है, सिर में दर्द हो रहा है ना, मरने वाले हैं, एनीथिंग, जब तक मर ना जाओ तब तक पढ़ते रहो. मरने वाले इज नॉट एन ऑप्शन एनीमोर. नहीं, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड. इतना नहीं पढ़ना होता है, राइट? वो आपने देखा भी है. 9 hours, 10 hours of effort every day with decent breaks, 3 breaks in a month or sorts, right? वो चल जाता है उससे काम. ठीक है? So let's keep at it. Let's not lag behind. Anybody who is lagging behind, please use the rest day
एज कैचअप डे। रेस्ट डे तो फटाक से रेस्ट हो जाता है सर, आज तो रेस्ट डे था। आज कैसे पढ़ लेते हैं हम? रिवीजन डे पे नहीं पढ़ेंगे। रिवीजन डे में अगर आप पीछे रह गए हैं, understand that. Let's say you are supposed to do 15 chapters in 6 days and you could do only 12 chapters by the end of the day 6. Revise 12 chapters first on day 7 on revision day. Please do not do chapter 13, 14, 15 till the time you revise the past 6 days effort. Otherwise those 12 chapters will also be lost. Right? So 12 strong chapters are better than 15 zero chapters. एक दिन एक्स्ट्रा निकाल के एक दिन पीछे हो जाएंगे, आगे एक आध रेस्ट डे में एडजस्ट कर लेंगे, बीच में हम भी देंगे थोड़ा सा आपको लीव है, चिंता मत करिए। विल गिव यू सर्टेन लीव इन बिटवीन। होली वोली आएगी, ठीक है, लोहड़ी पे नहीं मिलेगा अगर आप लोहड़ी पे सोच रहे हैं, है ना, बट बीच में विल गिव यू अ कपल ऑफ डेज टू कैच अप। वी अंडरस्टैंड कहीं ना कहीं मिस होगा ही, बट गिव अप नहीं मारना है। अब 5 महीने गिव अप नहीं मारना है, ठीक है। कुछ तो फोड़ेंगे ही, या तो पेपर या सर, फोड़ के जरूर आएंगे, कुछ तो फोड़ेंगे, जो भी फोड़ना है, सिंपल एज दैट, ठीक है। चलिए, और फिर वो मांझी वाला डायलॉग है ना, जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ऑनलाइन है सर, बैठ जाना वहां पे, सर से बात करो। चलिए।